Today we are starting with the idea of conditional probability, a very important subtopic as mentioned for the Bayes theorem, from which this year we are expecting a 5 marker question, direct question. The concept will be used over there as well. The NCERT exercise 13.1 is based on it. So what exactly is conditional probability? As the name itself says, conditional. So there is some condition, something attached along with this. Then we need to find the probability. Let us understand this. Let A and B be the two events associated with the same random experiment. Then probability of occurrence of A under the condition. Now condition is B has already occurred, and that is known as the conditional probability, and it is denoted by P of A by B, which simply means P of A by B. And in some of the books, few authors write like A by B. So it is just a notation. We are not dividing the events or probabilities are being divided. It is just the notation, right? So I generally prefer this. So P of A by B. ये क्या बताया है by definition? It is the probability of A given that B has already occurred. A and B are the events associated with the same sample space, same experiment. Anything which is given to me, it is also known to me. So these are certain keywords which will help me and guide me to understand, okay, in this question I have to use the idea of conditional probability. And this is given by the formula. डायरेक्ट एक रूल है, सिंपल फॉर्मूला है, P of A intersection B divided by P of B. I will take the problem based on this using two different approaches. One is the formula approach and the other one is a logic. Looking at the problem, just writing one or two steps, you will have your answer. But in boards, of course, if it is a 1 marker, apply the logic, wonderful. If it is a 2 marker or even more, in that case, you need to show the working as well. In that case, I would recommend to go for the formula approach. So understand very carefully, because answer in most of the case, question को read out करते ही हमें पता होगा. I'll come to that quickly. Also, अगर मैंने आपको P of A by B ये लिख के बताया है, what will be say formula for P of B by A? इन दोनों का इंटरसेक्शन आना है, तो B इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B, they are the same. और नीचे अगर आप ध्यान से देखें, जो बाद में लिखा था, that's it, उसकी probability से divide. So this is initially how we can have the formula. Consider few properties of conditional probability. Generally, you will not find the questions based on these, but one should know this is first property and this is second. This is just the deduction. So let A and B be the two events of the sample space S, or E is any event from the same sample space. Then P of A union B निकालना है, given है B E हो चुका है, P of A by E plus P of B by E
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी। तो अब आप चेक करिए इसको किस तरह से, अगर आप लॉजिकली सोचें तो 11th में पढ़ चुके हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस अब आप इसमें अपनी तरफ से चारों में, ऑल फोर टर्म्स में कर दो कि गिवन क्या है, से ई। तो सेम केस यहां हो जाएगा बाय ई, फिर पी ऑफ बी बाय ई, एंड देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एंड देन बाय ई। हेंस you have the direct formula. If they are disjoint, means mutually exclusive, this term will vanish and this will be the formula. Check out the second one, A naught. आपको पता है उसका मतलब, तो यहां पर भी वही चीज हो रही है। P ऑफ A naught क्या होता है? 1 माइनस P ऑफ A। तो अब आप दोनों तरफ कर दीजिए, गिवन है से B, तो 1 माइनस P ऑफ A बाय B। The way you can easily learn it. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट है ये तो, 1 मार्कर, फॉर्मूला बेस्ड। अभी स्टार्टिंग बहुत इजी से किया है, वैसे आगे भी ज्यादा इजी ही मिलेंगे। पी ऑफ ए बाई बी पूछा है, नोटेशन है, सिर्फ मुझे मीनिंग पता होना चाहिए। फॉर्मूला लाइक दिस। सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी? ये गिवन थी 4/13। व्हाट इज पी ऑफ बी? ये वैल्यू से डिवाइड करना था, एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तभी हो पाएगा जब मुझे फॉर्मूला याद है कि भाई नीचे पी ऑफ बी आना है। कई बार गलती से हम पी ऑफ ए से डिवाइड कर देते, दैट वुड बी रॉन्ग। चेक आउट दिस क्वेश्चन। A die is rolled 1 2 3 4 5 6. If the outcome is an odd number, आउटकम इज ऑड नंबर, ये चीज मुझे गिवन है। तो जो गिवन है मैं उसको बी से डिनोट करूंगा, और गिवन क्या है? ऑड नंबर, माने 1 3 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज प्राइम? तो प्राइम नंबर इनमें से कौन कौन से हैं? 2 3 एंड 5। सो हमें क्या निकालना है? प्राइम नंबर मतलब इवेंट ए गिवन इफ द आउटकम इज ऑड। बाय फॉर्मूला पहले मैं बता रहा हूं और फिर लॉजिक पे आऊंगा। ये हुआ फॉर्मूला। इसमें से हमें डायरेक्टली पता है व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन इन दोनों में क्लियरली 3 and 5। तो व्हाट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 2 cases out of 6 possible outcomes. And what is P of B? 3 cases out of 6 possibilities. Your required answer. और अब इसी को हम समझेंगे एक सिंपल लॉजिक के थ्रू, इन अ सिंगल लाइन कैसे आंसर आएगा। चेक करिए, आउटकम इज एन ऑड। ऑड कौन सा था? ये अब मुझे गिवन है, बी हो चुका है। तो जो मेरा सैंपल स्पेस था ना, इट इज नाउ रिड्यूस्ड।
अब ये रिड्यूस होकर इतना हो चुका है क्योंकि मुझे तो ये अब पता है कि भाई आउटकम क्या था, ऑड नंबर। अब क्या बताओ, इसमें से गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो इसमें से प्राइम नंबर, ये दो प्राइम नंबर है आउट ऑफ टोटल थ्री, योर रिक्वायर्ड आंसर। थिंक अगेन, just in a single step we will have our required answer. सेकेंड मेथड जो लॉजिक है वो क्या कह रहा है, आउटकम क्या था, ऑड नंबर, ये मैंने बी लिख लिया। तो जो मेरा सैंपल स्पेस में पहले 6 एलिमेंट थे, अब वो सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया और सिर्फ बी बन चुका है, क्योंकि ये चीज मुझे गिवन है कि भैया आया तो ऑड नंबर है, तो मेरा फोकस सिर्फ बी पर हो गया। अब इसमें से मैं क्या चाहता हूं, बी में से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज प्राइम। तो प्राइम कितने हैं बी में, दो हैं प्राइम नंबर, 3 और 5। टोटल कितने थे बी में, 3, 2/3, योर रिक्वायर्ड आंसर। Check out this question. A family has 2 children. सबसे पहले दो चिल्ड्रन का मतलब सैंपल स्पेस बी बी, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। वी अज्यूम द फर्स्ट वन इज द एल्डर वन, दूसरा यंगर वन है, ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, जो निकालना है ये ए इवेंट मान लिया, बोथ बॉयज, गिवन दैट, क्या गिवन है, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो पहले फार्मूला अप्रोच से मैं बात करता हूं, ए बाय बी निकालना है, ये तो लैंग्वेज से क्लियर हो जाना चाहिए। तो फॉर्मूला से डराइव होकर ये आ गया इसके इक्वल। कम से कम ये सोचो आपके पास बोथ बॉयज बीबी, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो दो बॉय हो या एक बॉय हो, ये आ गया। इन दोनों से व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन, ये आया बी बी। बस आप सोचो यहां व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, वन केस आउट ऑफ सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है, एंड व्हाट इज पी ऑफ बी, बी में कितने केस थे, 3 आउट ऑफ पॉसिबिलिटी 4, आंसर। और अब इसे करते हैं यूजिंग लॉजिक। डायरेक्ट आंसर कैसे मैंने बताया सोच पाएंगे, प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ध्यान से देखिए, अटेंटिव रहिए। गिवन क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, सैंपल स्पेस मेरा रिड्यूस हो गया इसमें। अब क्योंकि ये मुझे गिवन है, तो जो पता है उससे तो मुझे पता है कि सिर्फ ये मेरा अब सैंपल स्पेस है। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी बताओ, बोथ आर बॉयज, तो बोथ आर बॉयज एक केस,
आउट ऑफ पॉसिबल 3 केसेस? आंसर। ये मैंने अभी ध्यान दिया, चैट बॉक्स में कुछ आंसर पिछले में कहीं दिए थे, बट आई मिस दैट। ओके, ठीक है। अब राइट, ओके, 1/3 अब आ गया, क्लियर है, इजीली है। ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। 2 minutes, आई एम वेटिंग। लॉजिक से सोचोगे तब तो हार्डली आपको 1 मिनट चाहिए। Shall I wait? Anyone is answering? मुझे नहीं पता। ओके, 4/7, 4/7। चलो लेट मी वेरीफाई अभी आंसर। ओके, दैट्स ग्रेट। कईयों के आंसर अगर ये आ रहे हैं तो दैट फॉर श्योर 4/7 रहा होगा। आंसर अब हम निकालते हैं। 10 कार्ड्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। दे आर मिक्सड thoroughly and one card is drawn. If it is known that the number on the card is more than 3, जो गिवन है वो मैं बी कहता हूं हमेशा। तो मोर देन 3 का मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर लॉजिक से बात करूं तो मेरा ये हो गया रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। अब इसमें से बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर? 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस। 4 केसेस आउट ऑफ 7 पॉसिबिलिटीज। आंसर 4/, वेरी गुड। ठीक है, कईयों ने बताया बिल्कुल ठीक है। सो लॉजिक से आई एम श्योर एवरीवन इज क्लियर। होमवर्क में बस आप इसको फॉर्मूला बेस्ड कर लेना। 1 मार्कर आए डायरेक्ट लॉजिक से, 2 मार्कर हो जाए तब आप थोड़ा लिखकर बताना होगा ना, तो उस समय क्या लिखोगे, वो आपकी फार्मूला अप्रोच है। चेक आउट दिस क्वेश्चन यूजिंग लॉजिक। 2 minutes। 1/6, ओके। अभी मुझे आंसर नहीं है पता, वी विल चेक इट आउट। लेट 2, 3 more responses and then I will see. Okay, 1/6। चलो दैट्स ग्रेट। थोड़े से और भी अगर रिस्पॉन्सेज आ जाएं, अगर आप जेन्युइनली करें, कॉपी पेस्ट नहीं, बट अपने आप ईमानदारी से समझ आएगा, इजी चीज है ये। डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब देखो 3 टाइम्स की मैं बात करूं तब तो मुझे पता है इसमें 216 केसेस आने वाले हैं। उन्हें लिखना सोचना हम वो करेंगे ही नहीं, लॉजिक की बात करेंगे। ए क्या है? 4 on 3rd थ्रो। तो 4 on 3rd थ्रो का मतलब इफ आई अप्लाई अ सिंपल लॉजिक, यहां 4 फिक्स है और एक्स वाई 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन? दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें एक्चुअली 36 आ जाएंगे। इसके पास 6 चॉइस, इसके पास 6 चॉइस। बी क्या था? 6 on 1st, 5 on 2nd।
अब अगर ये फिक्स है तो यहां तो अगर ये फिक्स है तो आप इन केसेस को तो क्विकली लिख सकते हो ना। बी को मैं कहता हूं आप पूरा लिख लो, क्योंकि यही मेरा रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस बनकर आने वाला है। तो लेट अस राइट दिस एटलीस्ट। और अब क्वेश्चन क्या था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। लॉजिक से कहूं, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये मेरा रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस है। अब इसमें से मैं क्या चाहता हूं, किसकी वैरायटी निकालनी है? 4 ऑन थर्ड थ्रो। पढ़ के देख लो, ये रहा 4 ऑन थर्ड थ्रो। एक केस सिर्फ है आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स। योर रिक्वायर्ड आंसर। और यही चीज अगर मैं फॉर्मूला से देखो सोचना चाहता तो कोई वो भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। आपको पता है ये निकालना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B करेंगे, A इंटरसेक्शन B। अब आपको इन दोनों के इंटरसेक्शन को सोचना पड़ेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देखेंगे यही वाला केस आ रहा है, 1/216 हो जाएगा। और P ऑफ B, B के अंदर 6 केसेस थे। तो करना कोई अलग बहुत ज्यादा नहीं है, चाहे लॉजिक से सोचें या ऐसे। यहां बस प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आपको फॉर्मूले में डिवाइड बाय 216 दिखाना कंपल्शन होगा, ये याद रखेंगे। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ये तो और इजी केस लग रहा है। ट्वाइस का मतलब आपके पास सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं वो 36 केसेस आएंगे। लिखना ही रहा, वो लॉजिकली कर लेंगे। एंड sum of the numbers appearing is observed to be 6। एनीथिंग विच इज ऑब्जर्व का मतलब वो मुझे पता है, ऑब्जर्व करा मैंने, तो ये मुझे गिवन हो गई ना। तो ये बी हो गया। क्या है? सम इज 6। दैट इज सम 6 कब कब आता है सोचिए जरा ध्यान से। 1 5 2 4 3 4 2 5 1 निकालना गया था। What is the probability that the number 4 appeared at least one? Number 4 appeared at least once. What's the answer? Great. Yes, very good. अब देखो, आप सभी ने फॉर्मूला नहीं सोचा है, मेरे को पक्का पता चल रहा है। आपने लॉजिक को अब कैच कर लिया है, वो कंसेप्ट समझ लिया है कि आपके पास रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस है मेरा ये सैंपल स्पेस। अब इसमें से 4 एटलीस्ट वंस, तो 2 केसेस हैं और टोटल 5 है। योर रिक्वायर्ड आंसर। फार्मूला बेस्ड होमवर्क में अपने आप देख लेना। स्टिल अगर किसी को लॉजिक से आंसर डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 is based on it. This is probably a very simple and straightforward question, a part of your homework. ये भी वैसे सिंपल है। चलिए इसमें से हम एक फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। इवैल्यूएट ए यूनियन बी। बस एक फॉर्मूला की एप्लीकेशन को समझना है। गिवन आपको क्या क्या है? 2 टाइम्स पी ऑफ ए
is P of B, and this is 5 by 13. P of A by B is 2 by 5. I am waiting. Check it out. आप खुद सोचिए. तो वही फॉर्मूला से तो मैं बता ही रहा हूं भव्य अभी आपको यहाँ पर. बट अदरवाइज लॉजिक इज समथिंग विच इज हेल्पिंग अस अ लॉट. तो लॉजिक से अगर आपने आंसर सोच लिया तब आपको देखो अपने आप पता होगा. जैसे ये देखो लॉजिक से सोचा था ना 2/5, तो पक्की बात है फॉर्मूला से 2/36 अपॉन 5/36 लिखा जा रहा होगा. दैट इज फॉर श्योर. तो आप फिर इस तरह से रिवर्स थिंकिंग भी कर सकते हैं. और प्रतीक्षा ने आंसर दिया है. चलिए. एक तो इससे मुझे P ऑफ A मिल गया. इन्हें कंपेयर करने के बाद 5/26. P ऑफ B मिल गया, वो तो सीधा था. एक अब इससे A इंटरसेक्शन B का मतलब सॉरी A/B का मतलब A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B. सिर्फ फॉर्मूला लगाया है. मीन्स व्हाट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B? ये P ऑफ B RHS में आ गया. एंड what is P of B? 5/13. So ये आ गया 2/13. Therefore आपसे क्या निकालने को कहा था? P of A यूनियन B. या तो ये चीज आप स्टार्टिंग में सोच लेते कि भाई P of A यूनियन B इसके इक्वल होता है. ये तो फॉर्मूला हमारा 11th का ही है. अब आप चेक करिए क्या क्या चीजें मेरे पास ऑलरेडी पता है. ये दोनों तो डायरेक्ट थे, गिवन. जस्ट दैट ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता था, वो हमने इसकी हेल्प से निकाल लिया. योर सॉल्व एंड योर आंसर. सीधर डेसिमल में चेंज मत करना आंसर को. जैसे मुझे नहीं पता प्रतीक्षा का आंसर ठीक है या गलत, वो आप चेक कर लेना. बट टेक द एलसीएम एंड लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस ओनली. भाई डेसिमल में अगर करना ही है, मान लो 0.5 है, 0.2 एग्जैक्ट आ रहा है. अदरवाइज प्रेफरेबली 11/26. अब यहाँ पे आप चेक करेंगे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6 से लेकर 9 तक में सभी में P ऑफ E/F निकालना है. तो चेक करिए. जैसे 6th क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. तो हमें पता है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम. 8 केसेस हैं. तो इट इज बेटर अगर हम चलो सारे केसेस लिख भी लें. हेड हेड हेड, ये आप क्विकली लिख सकते हैं. योर सैंपल स्पेस एंड एज सजेस्टेड ऑर्डर को ही फॉलो करना. एक स्पेसिफिक वे में मैंने इनको लिखा है. अब आप चेक करिए ऑल दी पार्ट्स, दे आर वेरी बेसिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट अस टेक एनी वन ऑफ द पार्ट. सेकेंड पार्ट है, चलो या आप बता दीजिए. आई मीन कोई भी अगर आप कहते हैं, अदरवाइज लेट मी चूज द सेकेंड पार्ट. ऑल आर सिमिलर. सेकेंड पार्ट में अब क्या कहा है? E is at least two heads. At least two heads का मतलब ये 10th की चीज है. कम से कम 2 हेड होने चाहिए. तो 3 भी चलेंगे. तो या 2 हेड्स हो, ये आ गया एट लीस्ट 2 हेड्स. F क्या था? एट मोस्ट 2 हेड्स.
एफ भी लिख लेते हैं एट मोस्ट। अब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा दो हेड होने चाहिए, तो कम से कम जीरो हेड हो सकते हैं। तो व्हाट डज दैट मीन, जीरो हेड, वन हेड और टू हेड्स, ये सारे केसेस आ जाएंगे। चेक इट आउट, ये भी इसमें आएगा, क्योंकि मैक्सिमम टू हेड्स हैं, मिनिमम जीरो भी हो सकते हैं। ओके चलो, आंसर भी आने स्टार्ट हुए हैं। 3/7 परफेक्ट। तो आई एम श्योर, मुझे यही था कि इसके बाद आप अपने आप ही कर लेंगे, क्योंकि अगर रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस सोचा गया है, इट वुड बी मोर इजियर टू आंसर। सो डू इट यूजिंग बोथ दी मेथड्स, लॉजिक एज वेल एज फॉर्मूला। सेवन तो इससे भी इजी हो गया। टू कॉइन्स टॉस्ड वंस या वन कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, वो चार केसेस आएंगे इन होमवर्क। ये वाला बताइए जरा, चेक इट आउट, आई एम वेटिंग। Okay, Pratiksha is saying it's one, means a sure event. Okay, yes. Others also, ये मुझे सिर्फ 5-7 नाम ही हमेशा दिखते हैं क्लास में, थोड़ा सा और भी यार एक्टिव हुई है। Okay, good. Actually, the answer is simply one. It's a sure event. So those who haven't done it, check करके देख लेना. Simply, the answer is coming out to be one. बस इसमें एक सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं, वो क्या हो जाएगा, मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन, ये मैंने नोटेशन ले लिया, एंड दे लाइन अप रेंडमली फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो ऑब्वियसली लाइन में खड़े होना है, मान लो मदर यहां होती, तो या तो फादर सन होता इधर, या सन फादर। अब मदर के बाद मैंने लेफ्ट में मान लो कहा से फादर इज देयर, तो फादर अगर इधर है, फिर क्या होता, मदर सन या सन मदर। अब अगर फादर मदर फादर और फिर सन की बात कर लेते हैं, सन होता लेफ्ट में, तो फिर क्या होता, फादर मदर या मदर फादर। सो सैंपल स्पेस कंटेन दिस 6 एलिमेंट्स। इसके बाद लॉजिकली यू कैन आंसर इट डायरेक्टली। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। आप चेक कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसमें से शायद एक पार्ट नहीं, ठीक है, चेक कर लेना, सिंपल है ये। और फाइनली चेकआउट द होमवर्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ। फोर्थ इज अ हॉट्स में है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ये वाला अभी नहीं हुआ है कंसेप्ट, क्योंकि कंडीशनल के अंदर अभी तक मैंने जो भी केसेस लिए हैं, दे आर ऑल इक्वली लाइकली, राइट। बट हर बार ऐसा नहीं है, तो देयर इज द एक्सेप्शन केस दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको शो कर दिया है कि मैं एक कॉमन शीट पे कर दूंगा, 4 ये वाले क्वेश्चंस हैं और एक ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ जाएगा इसमें से। चलो एक काम करते हैं,
बी पार्ट होमवर्क में, ए पार्ट आप अभी बताइए। आई एम वेटिंग। ओके, दैट्स ग्रेट। 1/3। ठीक है, वो इतने आंसर एक साथ सेम आ रहे हैं। आई एम श्योर दैट एवरीवन इज क्लियर, एटलीस्ट दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग, दोज हु आर अटेंटिव एंड दोज हु हैव joined the class. सो आधे से ज्यादा तो अब एब्सेंट होने लग गए हैं, तो ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प इन दैट केस। Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9। ये आपको निकालना है। तो सम ग्रेटर देन 9 गिवन, वो इवेंट बी हो गया, दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। तो अब आप चेक करिए, ब्लैक डाई मैंने पहले वाली मान ली और रेड दूसरे वाली, एक फिक्स कर लिया। तो अब आपको कहा है 5 आया है ब्लैक डाई पे, तो अगर ब्लैक को पहली डाई मान लिया तो ऑफ कोर्स 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 ये पॉसिबिलिटी होती। अब मैं लॉजिक से करता हूं। दिस इज माय रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। इसमें सम ग्रेटर देन 9 कहां आ रहा है? एक ये केस है और एक ये केस है। सो 2 केसेस आउट ऑफ 6 फेवरेबल, टोटल जो आपके रहे थे इनफैक्ट 1/3 योर रिक्वायर्ड आंसर। सो नंबर ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्ट। चलिए ठीक है, पार्ट बी का भी बता रहे हैं, वो मुझे आंसर नहीं ऐसे याद है, तो दैट यू कैन डू इट इन योर होमवर्क। एंड इन केस एक और चीज है, इन केस एनी वन ऑफ यू गेट टू नो अबाउट सम इनोवेटिव आइडिया द वे आई एम टीचिंग, आपको लगता है कि और आपकी कहीं पे क्लासेस हो रही हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं, बट अगर कोई और बेटर वे अगर आपको पता है तो प्लीज डू लेट मी नो। आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं अगर इसमें कुछ बेटर और इम्प्रोवाइज अगर पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है। सो प्लीज डू लेट मी नो। चलिए, एंडिंग द क्लास नाउ। थैंक यू, यू मे लीव। थैंक यू, टेक केयर। या बाय बाय।